Good morning, class. Now, as you all know, we have discussed previous the chapter. In this chapter, we have discussed the importance of mother tongue. See, now that French was so much important to when they have understood the importance, when the sudden order was there that now no French will be taught and German will be taught. When this order came, they came to know the importance of French. Okay? And the writer, the French, especially felt very bad that see, he has not learnt this. At that time, the teacher was quiet, but with the quiet words, he heard a lot. He just had a guilt. फ्रेंच के अंदर एक गिल्ट था कि काश वो लर्न कर लेता द टॉपिक विच वॉज गिवन बाय हिज टीचर इफ ही वुड हैव लर्नड इट वुड हैव वेरी नाइस एटलीस्ट सम वर्ड्स ही वुड हैव टोल्ड. नाउ सी what was French expected to be prepared with for school that day? Yes, that day what was given? Can anybody tell me? The participles topic was given by M. Hanel and it was said to learn this topic. Okay, he was taking next day he wanted to take the test over it. So French was expected to be prepared for school that day with his lessons on participles. जो participles lessons था वो उसके ऊपर prepare के लिए बोला हुआ था. M. Hamel, his French teacher, had announced that he would question the class on participle. But poor French didn't know even the first word. See, he even did not, before he has not heard a single, matlab, see, that was the last day of the teacher. At that time, he showed so much interest. He just quietly listened all what he was sharing or what he was explaining. He listened to all. And previous, he has not paid so much attention. Now today he was having a guilt that if he would have paid so much attention, now he is paying as attention before, then it would have very nice. Okay. Now see, so and when this topic was given, in which he wasted his time. He wasted his time in many, you can say very strange, unusual things. Like see, now see, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें पढ़ाई से ज़्यादा हमें और चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं. जैसे बर्ड्स की चिरपिंग अट्रैक्ट करती है, मार्चिंग सोल्जर्स अट्रैक्ट करते हैं. इवन यू कुड स्टैंड साइलेंटली आउटसाइड ऑल्सो, है ना. Now see, what did French notice that was unusual about the school that day? Yes, what he noticed that all when he came at that time, जो एक normal school का routine होता है with the voice, nothing was there. And all were sitting silently. So French noticed many unusual things that about school that day. See, first, normal when the school began, there was such commotion. Commotion होता है जो little busy, noisy होता है जो, ठीक है, थोड़ा बहुत noisy और students इधर उधर जा रहे हैं, जो ये वाला शोर और उनकी बातें, that he was missing. So which was missing that day? On that day nothing was like this. All were there on the seat quietly. Okay. Second, his teacher M. Hamel has worn his ceremonial clothes और जो डेली जो क्लोथ्स होती हैं उनसे थोड़े डिफरेंट पहने थे उनके फ्रेंच टीचर ने, एम हेमल ने. उन्होंने सेरेमोनियल क्लोथ्स पहने थे. थर्ड, विच वॉज द मोस्ट अनयूजुअल, द विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस विच वर यूजुअली एम्प्टी ऑन अदर डेज. जो देखो उस टाइम पे जो खाली होते थे, बल्कि उस दिन जो पीपल थे वो बैठे हुए थे. ओके, सो दीज थ्री थिंग्स वर वेरी अनयूजुअल दैट डे. So if you want better, you can note down also. Now French noticed many unusual things about school that day. First, normal first क्या था? That there was no commotion, okay, which was missing that day. Second, his teacher M. Hamel had worn ceremonial clothes. Third था unusual that the village people were sitting quietly. बहुत चुपचाप बैठे थे बैक बेंचेस पे. So these three things.
जो उस टाइम पे खाली रह रहे थे वो उस टाइम पे वो बैठे हुए थे. वट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? सी एट दैट टाइम द वार सिचुएशन वॉज देयर, so all used to see the bulletin board, notice board, see what unusual or what strange things they could see. So an order that had come from Berlin had been put up on the bulletin board. The order was that from the next day onwards only German would be taught in the schools of Alice and Lauren. The new teacher of German would join the school from the following day. Now see, ऑल्दो ही वॉज लेट. देखो फ्रेंच लेट था लेकिन फिर भी उसको बिटवीन में उसको यही बोला गया कि बेटा अभी कोई आप लेट नहीं हो, ठीक है, तो आप बहुत इजीली स्कूल जा सकते हो. ही डिड नॉट इवन थॉट, उसने उस चीज़ पे सोचा नहीं था. लेकिन एक्चुअली क्या रीज़न था बेटा? बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगा हुआ था? एक ऑर्डर लगा हुआ था कि उस दिन से फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी स्कूल्स के, एलिस और लॉरेंस स्कूल्स के. और जो उनका न्यू जर्मन टीचर है वो उन्हें जल्द ही ज्वाइन करेगा. सो एन ऑर्डर डैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से ऑर्डर आया था, हैड बिन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड. ये ऑर्डर बुलेटिन बोर्ड पे लगा हुआ था. द ऑर्डर वॉज डैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स. नेक्स्ट डे से, डैट मीन्स डैट डे वॉज द लास्ट डे. जो नेक्स्ट डे है, ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स. सिर्फ जर्मन ही पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में ऑफ एलिस एंड लॉरेंस, एलिस और लॉरेंस स्कूल में. द न्यू टीचर फॉर जर्मन वुड ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे. और न्यू टीचर एक जर्मन का अपॉइंट किया जाएगा और वो नेक्स्ट डे से पढ़ाना स्टार्ट कर देगा. सो व्हाट चेंजेस डिड द, नाउ थिंक एज यू रीड में देखिए क्वेश्चंस. व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन द स्कूल डैट डे. क्या चेंजेस लेके आया था बेटा? और यू कैन से व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन. लास्ट लेसन जो उस दिन पढ़ाया जा रहा था उसमें क्या चेंजेस लेके आया था वो. The order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in schools of Alsace and Lorraine from that day. It stated that only German will be taught in the schools there from then onwards. देखो ये ऑर्डर आ गया था कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो आज ही स्टॉप की जाएगी, ठीक है, और स्कूल्स एलेंस और लॉरेंस स्कूल्स में, ठीक है, उसी दिन से. और ये ऑर्डर्स आ गए थे कि नेक्स्ट डे से क्या स्टार्ट हो जाएगी? जर्मन. द जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स देयर फ्रॉम ऑनवर्ड्स. आगे से जर्मन पढ़ाई जाएगी, ठीक है. दिस मीन डैट एम हैमल द फ्रेंच टीचर वुड हैव टू लीव. ये मतलब एक तरीके से देखो, जो जब फ्रेंच स्टॉप ही कर दी गई तो जेन्युइन था कि जो फ्रेंच टीचर है उसको वो जॉब छोड़नी पड़ेगी. दिस ऑल्सो कॉज द एल्डर विलेजेस टू अटेंड द स्कूल फॉर द लास्ट लेसन इन द फ्रेंच. इसीलिए जो भी बड़े थे, जितने भी बड़े थे, ये उस रीज़न से वो सारे के सारे बैठे थे कि आज सर का लास्ट डे है, ओके, फ्रेंच की लास्ट क्लास है. और उन्हें उस दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुई थी फ्रेंच लैंग्वेज की. So the order from Berlin caused the French language to be stopped from being taught in schools of Alice and Lawrence from that day. Now it stated that only German will be taught in the schools. यही था कि जर्मन ही पढ़ाया जाएगा there from then onward. This mean that एम हैमिल जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे वो उनका लास्ट डे था. और यही रीज़न से जो नहीं अटेंड करते थे सब ने उस दिन अटेंड की थी. इवन फ्रेंच ने जितना इंटरेस्ट दिखाया था उसने आज तक कभी इतना इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं था. और एक गिल्ट भी था फ्रेंच के अंदर कि काश वो आंसर कर पाता. Now how did French feelings about M. Hamel and school change? उस दिन कैसे चेंज हो गई थी वो चेंज आपको लेके आना, एक्सप्लेन करना है. French feelings about M. Hamel and school change as he was shocked
when M. Hamul told the students about the order from Berlin. ठीक है, फ्रेंच की फीलिंग्स जब चेंज हो गई थी एम हैमल और स्कूल के बारे में, जब एम हैमल ने उसको ऑर्डर बताया था कि नाउ जर्मन विल बी टॉट और फ्रेंच का आज लास्ट है. ठीक है, ये फ्रेंच का लास्ट लेसन है. सो फ्रांस फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर रूलर एंड क्रैंकीनेस. और फ्रेंच सब कुछ भूल गया था कि वो टीचर कितना स्ट्रिक्ट था या उसने कैसे पढ़ाया, स्ट्रिक्टनेस से पढ़ाया था, वो सब कुछ भूल गया. इंस्टेड ही स्टार्टेड लाइकिंग, और अब वो उल्टा पसंद करने लग गया था एम हैमल को. ओके, ही वॉज बींग सेपरेटेड फ्रॉम एम हैमल फॉर एवर. और हमेशा के लिए वो अपने फ्रेंड टीचर से अलग हो रहा था. उसको वो वाली फीलिंग बहुत ही अजीब लग रही थी. हिज फीलिंग्स टूवर्ड्स द स्कूल ऑल्सो चेंज. इवन स्कूल की तरफ की फीलिंग्स भी चेंज हो गई थी. एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप हिज बुक्स. वो अपनी बुक्स को इतनी जल्दी छोड़ना ही नहीं चाहता, ना ही लेसन्स छोड़ना चाहता था. एज दे सीम्ड, अब उसे ये लग रहा था कि ये बुक्स तो मेरी पुरानी दोस्त है. सीम टू बी हिज ओल्ड फ्रेंड्स. Is it clear? So French feeling about M. Hamel and school changed as he was shocked when M. Hamel told the students about the order from Berlin. जब बर्लिन से जो ऑर्डर्स आए थे, जब उसने वो बताए तो वो बिल्कुल फीलिंग्स चेंज हो गई. अब जो टीचर की तरफ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो गई कि देखो कितना, और इंटरेस्ट हो गया स्टडीज़ में. अनदर थिंग इज़ कि अब उसको वो लगता था कि बुक्स और वो उसकी ओल्ड फ्रेंड्स हैं. ओके, now the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you to this? Why does this happen? देखो बेटा, हमें जब वो चीज़ हमारे हाथ से चली जाती है ना, तभी हमें उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है. So when the order had come from Berlin that henceforth only German would be taught in school, जब ऑर्डर आ गए थे कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, पीपल रियलाइज डेट इट वॉज द लास्ट डे टू लर्न देयर मदर टंग. और ये इनर से फीलिंग थी कि ये बस लास्ट डे है जब उनको उनकी मदर टंग से यू कैन से अटैचमेंट इनका बहुत ज़्यादा था, कि उनको ऐसा लग रहा था बस ये लास्ट डे है जब वो मदर टंग पढ़ सकते हैं. टू शो देयर अफेक्शन फॉर द लैंग्वेज मैनी, और वो अपना अफेक्शन दिखाना चाहते थे, अपना लव दिखाना चाहते थे कि इस लैंग्वेज से. तो बहुत ज़्यादा जो ओल्ड पीपल थे वो आए थे, जो एल्डरली मतलब ओल्ड नहीं, सॉरी बेटा, जो बड़े थे वो सब आए थे. उन्होंने लेक्चर्स अटेंड किए थे. एंड मैनी एल्डरली पीपल केम टू अटेंड स्कूल ऑक्युपाइंग द लास्ट बेंचेस. उस दिन लास्ट बेंचेस पूरे भरे हुए थे. ठीक है, विच हैड यूजुअली रिमेन वेकेंट, जो पहले बिल्कुल खाली रहते थे और अब वो भरे हुए थे. फ्रेंच रिग्रेटेड नॉट हैविंग लर्न द पार्टिसिपल. आज फ्रेंच को सबसे ज़्यादा ये चीज़ फील हो रहा था कि उसने जो लास्ट टॉपिक था जो दिया था कि काश वो पढ़ लेता, वो उसे याद कर लेता, उसने बल्कि टाइम जो है वेस्ट कर दिया. When M. Hamel suddenly apprised them of the fact that they would become a laughing stock before the Germans. जब M. Hamel ने नौसी M. Hamel ने जब उन्हें ये बोला कि वो सिर्फ एक हंसने की, एक लाफिंग स्टॉक डेट में से एक हंसने की चीज़ बन जाएंगे जर्मन्स के आगे. ठीक है, देयर लैंग्वेज वॉज देयर आइडेंटिटी, की ये लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये उसकी पहचान है. द की टू देयर प्रिजन्स, वो चाबी है किसकी, जेल से बाहर आने की, या जेल में कह दो. द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू नो व्हाट, देखो, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस टू हाउ इम्पोर्टेंट देयर लैंग्वेज वॉज कैन बी टेकन फ्रॉम एम हैमल्स मेस्मराइजिंग लास्ट लेसन. जो वो लास्ट लेसन याद कर रहे थे. एवरी वन वॉज एक्सट्रीमली अटेंटिव. उस दिन सभी के सभी बहुत ध्यान दे रहे थे, बहुत ध्यानपूर्वक उनका सुन रहे थे. फ्रेंच टू फाउंड द लेसन क्वाइट ईजी, और आज फ्रेंच को भी बहुत ईजी लग रहे थे ये सारे लेसन्स. Whereas earlier he had found the French classes, जबकि पहले उन्हें फ्रेंच क्लासेस बहुत ही
डिफ़िकल्ट लगती थी, कि मतलब कि समझ में नहीं आएगा ऐसा लगता था। और आज टोटली डे जो था उनका बिल्कुल ही अपोजिट था। So you can see when the order had come from Berlin that henceforth only German would be taught, जब ये ऑर्डर्स आ गए थे कि सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी स्कूल्स में, पीपल को इम्पोर्टेंस हुई थी। जो लास्ट बेंचेस थे, जो क्लासरूम में जो लास्ट बेंचेस थे जो खाली रहते थे वो भी भर गए थे। इवन जो बड़े थे एल्डर वाले वो भी पढ़ने आए थे लास्ट लेसन, उन्होंने भी बहुत शांति से अटेंड किया था। इवन फ्रेंच उसने भी खुद ने बहुत ही शांति से वो सारी क्लासेस जो थी वो अटेंड करी थी। और फ्रेंच को रिग्रेट हुआ था ये कि उसने लास्ट टॉपिक जो सर ने दिया था ये उसने पढ़ा क्यों नहीं, कि काश वो उसे याद कर लेता। Now see, French thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? देखो बेटा इस लाइन का क्या मीनिंग है। देखो नाउ दिस थॉट ऑफ फ्रेंच कुड हैव एनी ऑफ द मीनिंग्स गिवन बिलो, कि इन तीनों में से एक बात हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है बेटा। It may have meant that they all had grown up using French as their language. Now, taking it away from them would be unfair and unkind. The language was as natural to them as cooing is to the pigeons, robbing them of it, and forcing German on them would be only difficult but next to impossible. देखो बेटा ये जो उसमें राइटर है वो इम्पोर्टेंस सिखाना चाहता है कि वो इस लैंग्वेज के साथ, जैसे आप हिंदी लैंग्वेज है बेटा, हिंदी लैंग्वेज आपको नहीं भी सिखाएंगे ना तब भी आपको आ जाती है, क्योंकि वो आपकी मदर टंग है। आप बचपन से उसे पढ़ रहे, सुन रहे हो और सुनते सुनते ही बड़े हो गए हो। तो वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने सबने सुनते सुनते ही उनके और आपस में बातचीत करते ना ही उन्होंने, मतलब वो इस फ्रेंच लैंग्वेज के साथ वो बड़े हुए हैं। उन्होंने बात जो उनकी मदर टंग ही फ्रेंच लैंग्वेज थी, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने सुना भी होगा और उन्होंने बातें भी की होंगी उसी लैंग्वेज में। और अगर अब अचानक से उनसे वो ले ली जाए तो क्या वो सही होता है? वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, गलत होता है। कि एकदम से तुम चाहोगे कि तुम्हें जर्मन आ जाए या जर्मन ही सिखानी है, तो ये चीज़ गलत होती है। क्योंकि जैसे एक एनिमल जो पढ़ नहीं सकता वो जब बोलता है, वैसी ही लैंग्वेज उनके लिए फ्रेंच थी, कि वो उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी बल्कि वो ऐसे ही बोलते रहते थे। जैसे एक पिजन के लिए कोइंग ईजी है वैसे ही तो रॉबिंग दैम ऑफ इट, कि एक तरीके से उनसे जो चोरी कर रहे हैं, जो चुरा लिया है उनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज और जर्मन उन पे इम्पोज कर दी है, ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नामुमकिन। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज विच इज़ इम्पोज्ड ऑन देम। देखो बहुत मुश्किल होती है वो लैंग्वेज एक्सेप्ट करना जो आपको फोर्सफुली दी हो, ज़बरदस्ती दी हो। आपकी जो विश हो, मान लीजिए कि ये मुझे, सपोज़ करिए आपकी विश है कि मुझे ये खाना है, ठीक है, और आप बड़ा इंटरेस्ट से उसे देखें, लेकिन कुछ नाराज़गी से अगर आपको मम्मी ने प्रेशर किया कि नहीं ये खाना ही खाना है, आप वो खा तो लोगे लेकिन वो एक ज़बरदस्ती वाली फीलिंग होगी, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, जो एक कीन इंटरेस्ट के साथ होता है। तो इसीलिए फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, इसीलिए फ्रेंच जो थी उनकी, सो पीपल को ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर कोई थोप दिया गया हो, ठीक है। फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, क्योंकि उनकी फ्रेंच थी मदर टंग और वो उसके साथ बहुत ही कंफर्टेबल थे। Now, language is a tool for communication. Adopting a new language cause पेन एंड डिस्कम्फर्ट। देखो लैंग्वेज एक ऐसा टूल है जो आपस में आप बातचीत कर सकते हो, और अगर आप नई लैंग्वेज लेके आओगे तो वो आपको बहुत तकलीफ़ देगा और उसमें आपको कंफर्टेबल भी नहीं होगा, कि उसे जल्दी से आप अचीव नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे, उसको समझने में बहुत टाइम लगता है।
It was not to be easy for them to adapt to the new situation. और ये बिल्कुल भी आसान नहीं था एक नई सिचुएशन को फेस अडॉप्ट करना, मान लेना उसे, ठीक है. डैट इज अडॉप्ट जर्मन that was forced onto them. Moreover, they identified with the French language. It was a factor that helped them bond with the countrymen. देखो वो उनकी पहचान थी फ्रेंच लैंग्वेज में, और ये फ्रेंच लैंग्वेज से वो जाने जाते थे कि बल्कि वो उसी कंट्री के रेजिडेंट हैं, ठीक है, उसी कंट्री के बिलोंग करते हैं. ओके, सो उनकी ये मदर टंग है. वो कैसे पहचानेंगे? उनकी लैंग्वेज से. ओके, सो आई एम वंस अगेन रिवाइजिंग. सी ही मे हैव meant that they all had grown up. वो बड़े हो चुके हैं away from French as their language, की फ्रेंच लैंग्वेज को देख के वो जो पले बड़े हैं और अचानक से बोल रहे हो कि नहीं कोई नई लैंग्वेज सीखो, तो ये तो ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात है ना, क्योंकि उनकी मदर टंग क्या है? फ्रेंच, और वो उसे पढ़ने की भी नहीं ज़रूरत है, वो बिना पढ़े भी गुनगुना सकते हैं. तो ये एक जर्मन उनकी अलग लैंग्वेज है, और उन्हें ये बहुत ही गलत लग रहा था किसी पे इम्पोज करना. ओके, और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना वो बहुत ही ज़्यादा उन्हें डिस्कम्फर्ट दे रहा था, यू कैन से. वरना लैंग्वेज किसी को भी ऐसे नहीं लगती इम्पोजिंग वाले, लेकिन ये इम्पोज कैसे थी कि ऑर्डर्स आ गए थे, और जबकि वो आपस में बातचीत करते थे, उनकी मदर टंग यही थी, तो उनके लिए अब कितना मुश्किल था ये रहना कि एक नई लैंग्वेज सीखना है और उसी से बात करना है. बेटा बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है. नाउ सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन अ पीपल are enslaved as long as they hold fast to their language as if now see, जबकि उन्हें ये लगता था कि इस लैंग्वेज से वो प्रिजन के भी द्वार खोल सकते हैं. तो अब आपको कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री वेयर अ कॉन्कर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम. ऐसी कोई बता सकते हो जहाँ पे जो किसी ने राज किया है तो वो जो लैंग्वेज जो चल रही है वो उनसे छीन ली गई है, उनसे उनकी मदर टंग छीन ली गई है. लेट्स सी. देखो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने, जिन्होंने राज किया है, ठीक है, कॉन्कर मतलब अगर अपने हिस्से में, अपने किंगडम में ऐड कर लिया, उसे हासिल किया है उस किंगडम को, तो बहुत सारी ऐसे है कि जहाँ पे लैंग्वेज जो है वो उन्हें इम्पोज कर दी है. जैसे जर्मन ट्राइब्स ने जब नेटिव बॉथिक पीपल को किया था व्हाट इज़ नाउ इंग्लैंड एंड इम्पोज देयर कल्चर, तो उन्होंने कल्चर और लैंग्वेज दोनों की ही चेंजेस लाए थे, दोनों का ही कहा था कि हमसे ले जाओ. So beta, now next answers we will discuss it tomorrow. Hope till here it is clear to you.
So beta, I hope till here it is clear to you.